to the investors meet. A very warm welcome to all of you at the investors meet knowledge series online session. Good to see so many of you Sunday morning. I think all set after a good breakfast and a coffee mug in hand. We all are very lucky to be a part of Indian economy. India is a very fast growing and rapid growing economic country with the 10th position in the world few years back. And we are 6th as on today. As announced by our Prime Minister, very soon we are going to be in the 3rd position. So everybody across the world is starving to join the Indian market, and we are already a part of it. Good to see. But when we are doing here the investors meet, share market to be handled carefully. It's a very volatile market. Nopanians एक फैक्ट्री है, मैं हमेशा कहता हूँ, नॉलेज की, काबिलियत की, और हीरे भरे पड़े हैं हमारे नोपानियंस एलमनाई बोर्ड के अंदर. चाहे मैं गौरांग लाखोटिया की बात करूं, चाहे मैं अर्पित खंडेलवाल की. वॉइस इज नॉट कमिंग. हाँ, थोड़ा वॉइस का इशू है. आई थिंक विल देयर इज सम इंटरनेट इशू. जस्ट अ सेकंड. No issue. I think Arun Bhaiya, if you can take it from there. Thank you, Shyam. ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं because Sandeep already mentioned we are 5th largest economy already. 3rd हो जाएंगे बहुत जल्दी. साहब ने announce कर दिया है और सब लगे हुए हैं. हम लोग अपने लोग रुपया कमाने का काम करते हैं, वो करेंगे शेयर मार्केट से. So that's important for all of us. And I think let's not waste time. किसी को घूमने जाना है, कुछ करना है, बारिश का मौसम है बहुत सुंदर. So धनपत को हैंड ओवर करते हैं. Let's start the knowledge straight away. Perfect. So Dhanpat Bhaiya, we'll start the session. Just for information of everyone, आपने पहले क्या करेंगे? Dhanpat Bhaiya will speak for around 30-40 minutes. जैसा उनका जो प्रिपेयर किया है उन्होंने. उसके बाद we'll take questions one by one. Hope it's okay for everyone. So Dhanpat Bhaiya, let's start. Okay. First of all, I would like to thank the NNA committee and the entire management team for giving me an opportunity to host this webinar. And साथ में ही मैं जितने भी नुपानी के भाई लोग हैं जिन्होंने संडे के दिन सुबह अपना टाइम निकाल के इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए अपना समय दिया है, I am very thankful to them. And I hope this session will be useful and for the valuable time which they have given to the webinar. So webinar is more not only about the quant or the chart or anything, it's all about how one should manage money. आज भी इंडिया में क्या है, financial literacy is at a very low. We work 12 to 14 hours each day to earn money. हम लोग सब पैसा कमाते हैं, बट वो पैसा जो है वो हमारे कहीं ना कोई बैंक अकाउंट में, म्यूचुअल फंड में, इक्विटीज में इधर उधर पड़ा हुआ है, and that's lying 24 hours idle. If we are getting 18 to 20% return on our money, which is 24 hours idle, should earn much more than that. And वो कैसे करें? For that we need to have some tools. We should be keen to learning. आज it's very easy to give tips and कि यहाँ पे खरीद लो, यहाँ पे बेच दो, वो सब करते हैं, सब कर सकते हैं, बट उसको भी डिसिप्लिन वे में कैसे मैनेज करना, कैसे अपने पोर्टफोलियो को बचाना, एंड कैसे उसको, द मेन थिंग इज हाउ टू मैनेज द रिस्क एंड हाउ टू जनरेट दैट रिटर्न इज द मेन थिंग, ऑब्जेक्टिव. Okay, so I'll like to share my screen with all of you, and the key agenda for today which I have highlighted is been shown over here. As you can see, the first topic, आज का जो पहला टॉपिक है वो how to study the quant levels and their significance. जो मैं हर महीने एक quant sheet देता हूँ जिसमें वो इंडेक्स एंड कुछ शेयर्स के लेवल्स होते हैं. बहुतों के क्वेश्चंस आए हैं ग्रुप में और पर्सनल में भी आते हैं कि इसको कैसे स्टडी किए, इस पे कैसे ट्रेड करें. So that I'm going to share. I'll share something about charts which will be
different than what we, मतलब it will be addition to what we all are doing. I'll talk about कि share की valuation कैसे आदमी को समझनी चाहिए using the present value and future value method. I'll share a small 1 minute or 2 minutes about importance of assessing risk profile and aligning investment strategies, asset allocation, insurance versus SIP plan, and then finally it will be concluded with a question and discussion round. Okay, so coming back to the first topic, the first point of agenda, which is the quant level. सबको दिख रहा है screen? Hello. Yes, yes, दिख रहा है. Okay. So this is the level which I share this is a sheet which I share every month. Okay. So this is the sheet which I have shared for. धनपत भैया एक बार स्टॉप शेयर करके वापस करिए. Stop share. मैंने कर दिया, वापस एक बार आप शेयर. दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ. अच्छा, तो ये लेवल्स मैंने इस महीने के दिए थे for the June expiry series. This is based on my quant model and this is a, आप ये देख सकते हैं जो ऑरेंज में ये जो लेवल्स है, यहाँ पे मैंने लिखा फ्यूचर्स के प्राइस से निफ्टी के on 25th of May 2023 was 18,420 and this is a breakdown level which is in red and then there is a breakout level which is in the blue. अब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है? ब्रेकआउट मतलब इज ऑन द अपसाइड एंड ब्रेकडाउन इज ऑन द डाउन साइड. अगर निफ्टी आज 18,420 पे क्लोज हुआ है तो अगर कल 488 के ऊपर अगर क्लोज होता है देन वी आर ऑन द अपसाइड ब्रेकआउट एंड सिमिलर इफ इट क्लोजेस बिलो 18,351 देन वी आर ऑन द डाउन साइड जर्नी. एंड उसमें भी अलग अलग सपोर्ट पॉइंट्स है जहाँ से निफ्टी बाउंस बैक करता है which many people use for intraday trading, right? So what happens is if you look at the chart, I'll just share a chart also, chart screen. भैया every time you need to stop share and then again reshare. Stop share. मैंने कर दिया, आप खाली शेयर कर. Share. Yes, it's visible. Visible, na? Yes. Yes. यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 25 मार्च की. 25 मार्च को निफ्टी फ्यूचर्स जो था it was closing at 18,321. This is SGX है. Let's go to Nifty India. Nifty. Yes. Hmm. 25th May. Why it's not again? Just okay. I understood प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है. 25th May को जो क्लोजिंग इसने लिया है जो दिखा रहा है 321 दैट इज फॉर द May सीरीज एक्सपायरी. बट जो जून के एक्सपायरी थी दैट वाज एट 420 व्हिच आई हैव प्लॉटेड ओवर देयर. जून की May was expired at 321 if I remember right. आपको याद होगा 25 तारीख को 2:30 बजे के आसपास मैंने ग्रुप में कॉल भी दिया था एक तेजी का. तो 321 was the closing expiry
Next day, if you see, there was a gap up and it closed above 573. So the moment you see कि हाँ जो Excel sheet मैंने इस पर वापस फॉर्स शेयर करना पड़ेगा. शेयर ये 488 के ऊपर क्लोज अगर दे रहा है तो इट मींस देयर इज एन अपसाइड ब्रेकआउट एंड इट विल गो अप टू 18763, राइट. इफ यू सी यहाँ पे आप 26 को आप देखोगे तो इट गेव ब्रेकआउट अबव 488 एंड इट क्लोज एट 18573. इफ यू कैन सी on the top there's a closing which is coming, that's 18573. उसके बाद the next level which it went is 742, which was near to my the next resistance level, which was 18,763 था. So it reversed from 18,742 was the high on 30th of May, and उसके बाद फिर वापस से correction हुआ and it came down again. जस्ट अ सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट. आपका स्क्रीन चेंज नहीं हुआ. आप जब एक्सेल में गए तो दिखाया नहीं. हाँ अब आया, राइट. अभी एक्सेल आ रहा है. हाँ हाँ. अच्छा, ये 763 जो रेजिस्टेंस था, 488 was been broken out on the very next day, and on 30th of May, which was basically I think Wednesday. तो वेडनेसडे को इसने 742 का हाई बनाया था एंड वहां से वापस उसने रिवर्ट किया नीचे, रिवर्ट करके बट इट डिडंट ब्रेक द लोअर द ब्रेकआउट लेवल. उसके नीचे बंद नहीं किया. इट फाउंड सपोर्ट इन बिटवीन एंड देन अगेन इट कंटिन्यू टुवर्ड्स द अपवर्ड जर्नी. नाउ इट इज आई विल अगेन गो बैक टू द चार्ट. भैया आप एक काम करो ना, हाँ, शेयर स्क्रीन में एक डेस्कटॉप बोल के ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करो. desktop. I'm not getting that option. जब शेयर स्क्रीन कर रहे हो ना तो आपको 3-4 विंडो दिख रहा होगा. हाँ, तो मेरे को 3-4 उसमें एक नीचे डेस्कटॉप दिख रहा होगा. नहीं, डेस्कटॉप बोल के कुछ नहीं. तो आप बार बार फिर स्टॉप स्क्रीन करके वापस शेयर करना है जब भी आप शिफ्ट करो कोई. डेस्कटॉप नहीं है. अच्छा, तो हाउ डू आई डू दैट? जब आप शेयर करते हो वहां डेस्कटॉप का एक ऑप्शन आ जा रहा है. स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा हो, स्क्रीन दिख रहा है आपको? हमें स्क्रीन दिख रहे हैं बट दे आर नहीं, जब आप मल्टीपल. शेयर क्लिक कर रहे हो तो वहां स्क्रीन का भी एक ऑप्शन है. हाँ, स्क्रीन अब आ गया. अब अभी ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है. हाँ, ठीक है. 38 it made a high of around 742 and उसके बाद एक दो दिन ये डाउन साइड कंसोलिडेट किया बट इट देन ब्रोक द अर्लियर लो व्हिच वाज 488. जो ब्रेकडाउन लेवल था उसने उसको तोड़ा नहीं एंड देन इट स्टार्टेड मेकिंग न्यू हाइज एंड न्यू हाइज. so we can follow that point levels in that way कि हाँ कि कहाँ पे हमें तेजी खेलनी है, किस सपोर्ट पे खेलनी है, क्या टारगेट है फर्स्ट. And charts will definitely help where to book profit and where to again start the upward journey. We'll only change the view once that is broken, the upward or the downside is broken. इसके अलावा एक बहुत important चीज है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, which is there in the quant Excel sheet, जो है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे remarks बोल के कॉलम है, you can see clearly. Sharp fall in Nifty if doesn't close above 600. भैया स्विच स्क्रीन आ रहा है? हाँ अभी आया. Sharp fall in Nifty if doesn't close above 18,614 on a daily basis and major breakdown if closes below 518 as it's a major support. Closing above 614 on a daily basis will be a major breakout on the upside. तो ये मैसेज एकदम सिंपल है कि 614 के ऊपर अगर डेली बेसिस पे क्लोजेस कर रहा है तो वी आर ऑन अप ट्रेंड. अगर 518 के नीचे अगर जाता है तो वी आर ऑन अ डाउन साइड. नीचे का ब्रेकआउट लेवल्स आ रहा है. अब नीचे में जब ब्रेकआउट लेवल्स आ रहा है तो हमें मालूम है पहले ये 488 तोड़ेगा, फिर 351 तोड़ेगा तो ज्यादा बेरिश है. द नेक्स्ट सपोर्ट इज 18,076. then we have multiple supports which we can get through charts or there's another thing which I share on a daily basis which I'll share with you guys.
is भैया स्विच स्क्रीन करिएगा. I'm कर रहा हूँ. Hello, can you see this? No. Right? हाँ अभी आया. अभी आया. हाँ. ये लेवल्स मैं डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ सुबह. It will take some time to get it authorized, and जिससे क्या है कि the group will be benefited, and I am working on it through tech कि हाँ इसको कैसे इसको ऑटोमाइज किया जाए, एंड ग्रुप में नॉट ओनली निफ्टी बैंक निफ्टी बट मेजर स्टॉक्स के भी आपको लेवल्स डेली के मिल सके, जो it's a work in progress and it will take some time. So this is a level which I share. Now how to interpret and read these levels. ये जो levels है इसमें दो options रहते हैं. Top 5 if you see बैंक निफ्टी futures, इसका level is 43,734 which is the current price at what I am sharing at the time where I am sharing. Now the bottom 5 you'll see there is a level which is on the right hand side in yellow. आप लोग को दिखेगा 43,701. 43,701 के ऊपर जब तक हम लोग है तो वी आर बुलिश, एंड ऊपर का जो टारगेट है वो 704, 708, 714, 731, 749. सेम साइड अगर 43,699 is broken, then we should not remain long in the market, and the lower side target is open. 3626, 43,598, 43,597, 43 आपको देख सकते हैं. And charts can be used to ascertain where the called यहाँ से रिवर्सल आ सकता है. वेरी गुड चार्ट्स लाइक गोरांग चार्ट शेयर करता है दिन में 2-3 बार, और भी लोग शेयर कर सकते हैं. भैया चार्ट. हेलो. हाँ हेलो. हाँ चार्ट शेयर कर देगा. तो बहुत लोग चार्टिंग्स जानते हैं, बहुत लोग चार्टिंग्स करते भी हैं, एंड दे कैन यूज बेसिक चार्ट. वो भी मैं अभी कवर करूंगा कि हाउ टू यूज चार्ट्स टू इंटरप्रेट दिस लेवल्स एंड ऑल. तो दिस इज वन थिंग कि आप इस लेवल्स को कैसे रीड करें अलॉन्ग विद द एक्सेल फाइल जो मंथली है. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस थ्रू विच यू कैन मेक अ व्यू अबाउट द मार्केट कि मार्केट यहाँ से बुलिश लग रहा है या बेरिश लग रहा है या शॉर्ट टर्म में क्या ट्रेंड है. ये आपको काफ़ी हेल्प करता है, एंड नॉट ओनली ऑन अ डेली बेसिस, मोस्टली ऑन वीकली एक्सपायरी डे जो लोग ट्रेड करते हैं उनको ये काफ़ी हेल्प करता है. तो दिस आई एम एंड नाउ ऑल दिस can you see the Excel now? Yes. Okay. Now coming back to the thing, along with this मैं ये 4 प्रोबेबल एक्सपायरी लेवल्स देता हूँ जिसपे मैं जिसे इसमें ना मैंने लिखा है कि if Nifty sustains below 518 which is mentioned over here 518.50, then Nifty can go the expiry of 17,962, and if Nifty sustains on a daily closing basis above 614, then the probable expiry level for Nifty is 18,878 or 19,096. These two are the probable expiry levels. क्योंकि हम अब इसमें क्या कर सकते हैं कि जब हम 18,620, 650 के आसपास, if we get a chance on Monday, what we can do a long call spread, और साथ में हम bear put spread भी बना सकते हैं जिससे we can get a good return, and also we can hedge our portfolio. It can be used for anything. People who are trading, they can do trading both sides with a good risk reward. मैं नॉर्मली प्लेन ऑप्शंस बाय करता नहीं, प्लेन ऑप्शंस बेचने की एडवाइस देता हूँ. मैं हमेशा स्ट्रैडल बोलता हूँ, स्प्रेड ट्रेडिंग के लिए बोलता हूँ. जैसे इफ यू मेक 18,700 to 18,900 का बुल कॉल स्प्रेड, आपको करना क्या है, आपको 18,700 का कॉल लेना है, 18,900 का कॉल बेचना है, सिमिलर क्वांटिटी, एंड वेयर यू कैन मेक अ डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड. सपोज अगर वो 30-35 रुपीज स्प्रेड में बन रहा है एंड यू आर सीइंग कि यहाँ जो टारगेट है इट इज अराउंड 18,878, तो अगर यहाँ तक जाता है तो आपको जो स्प्रेड 30-35 रुपये में आपने बनाया उसका वैल्यू करीबन 170-180 रुपया आराम से हो जाएगा, विच इज द इंट्रिंसिक वैल्यू. ठीक है.
it depends on you how you take a call and how you it depends on your risk profile also. ठीक है, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा 2 लॉट से काम कीजिए ताकि एक लॉट में आप प्रॉफिट बुक कर सके जिससे आपकी कॉस्टिंग 0 हो जाए, और दूसरे लॉट को यू कैरी अप टू द टारगेट, सो टू मेक अ गुड रिवॉर्ड रिटर्न. सिमिलरली आप डाउन साइड का भी पुट स्प्रेड बना सकते हैं दिस लेवल पे, बिकॉज दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट. वहां से अगर टूटता है तो नीचे जाने की भी बहुत बड़ी संभावना है, तो देयर यू कैन मेक अ वेरी हेल्दी रिटर्न. तो मैं बोलूंगा आपको डीप आउट ऑफ द मनी, जैसे 18,000 के आसपास की एक्सपायरी लग रही है तो आप 18,300 टू 18,000 का बना लीजिए, वो आपको 10 रुपया के आसपास बन जाएगा. एंड यू कैन गेट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 200 रुपीज प्रॉफिट इन दैट. So it all depends on the risk reward ratio and one's risk profile. Okay. So similarly, this is with all the Bank Nifty hai, ACC hai, Adani hai. I share for the stock universe which I am covering right now. अभी आप Reliance देखेंगे तो Reliance को मैंने दिया था कि seems reversal in Reliance on downside if 2595 is protected on upside on a daily closing basis, and full bearish if closes below 2480 on a daily closing basis. तो आप देखेंगे कि इस महीना जो रिलायंस था, आई एम अगेन स्विचिंग द स्क्रीन. Not visible there. हाँ, इट्स विजिबल. हाँ हाँ हाँ. आप ये देखिए, दिस इज द डे ऑन 19 जून जहाँ पे 2590 रिलायंस ने हाई बनाया था. माई लेवल वॉज 2595 ऑन अपसाइड फॉर अपसाइड ब्रेकआउट. इसने 95 को ब्रेक नहीं किया एंड यू कैन सी अ शार्प रिवर्सल ऑफ अराउंड 70 to 80 points. So this is what I say how to, मतलब ये कॉन्ट मॉडल कैसे काम करता है, इसको कैसे रीड करना है एंड इसको कैसे इंटरप्रेट करना है. एंड आप देखोगे यार 2590 तो सीधा 2515 तक का लो बनाया था. इफ यू कम बैक टू द एक्सेल, इज इट विजिबल? Yes. तो रिलायंस में आप देखो ये एक्सपायरी लेवल भी जो है ना, आपको सब चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक्सपायरी लेवल्स भी जो है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2595 इज द व्हाट यू कॉल जस्ट इज द रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस 2595.30 का. एंड आप देखिए एक्सपायरी की जो 2 लेवल्स है उसके आसपास भी था, तो यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल था. यहाँ पे अगर आप बनाते हैं तो पहला सपोर्ट वॉज इसके पहले, इसके नीचे पहला सपोर्ट वॉज 2529. तो यू कैन सी यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट अवे 70 पॉइंट्स का मूवमेंट ऑन द डाउन साइड, 60 to 70 पॉइंट्स. तो यहाँ पे आप पुट का स्प्रेड बना सकते हैं, स्ट्रैटेजीज पे काम कर सकते हैं, और यू कैन अनवाइंड योर लॉन्ग पोजिशंस, या अगर आपके पास कैश में है तो यू कैन एक बार आप उससे एग्जिट कर सकते हैं एंड वेट कर सकते हैं नीचे में कि हाँ वापस खरीदना है. Or you can hedge through many strategies are there through which you can hedge your cash portfolio also. That will be a lengthy session, so I'll cut it short because that I'll cover in the next session whenever I get an opportunity. So this is how it works. इसके अलावा मैं नीचे में कुछ नोट्स में पहुंच जाता हूँ which is very critical and which should be read first before trading. कि ब्रेकडाउन एंड ब्रेकअप लेवल्स क्या होता है, ब्रेकआउट लेवल्स क्या होता है, ऑल लेवल्स आर फ्यूचर लेवल्स है, कोई भी कैश के लेवल्स नहीं है. इन केस ऑफ स्टॉक विच इज रेजिस्टेंस 3 और सपोर्ट 3 लेवल्स, ड्रास्टिक मूवमेंट कैन बी सीन इन दैट स्टॉक बिफोर एक्सपायरी. आप लोग लास्ट मंथ देखेंगे अदानी एंटरप्राइज में एक बहुत बड़ा तेजी आया था लास्ट मंथ, अराउंड 2060 के ऊपर उसने सीधा आई थिंक 2700 तक मारा था एंड वहां से नीचे वापस 2500 के आसपास एक्सपायरी दी थी. आई एम नॉट रॉन्ग, अदानी एंटरप्राइज या 2559 की एक्सपायरी दी थी एंड उसने
2760 और 2780 का हाई बनाया था, because my resistance 3 level over there was 2070, which was the third resistance as per this. This month it's higher, but last month it was there. तो आप देखोगे उसको जैसे उसने ब्रेकआउट दिया, इसका इस पॉइंट का मतलब यही है कि ये रेजिस्टेंस 3 है, which is in column K, and support 3, which is in column C. इस दोनों को अगर कोई भी स्टॉक कोई भी दिन तोड़ के क्लोज करता है, उसके ऊपर चलता है, तो कभी भी 15-20% उसमें उस मंथ में मूवमेंट आना है. It's for sure. You can check the same with Godrej Properties, which what happened in May, March. जो मैंने शीट दी थी कि उसके साथ क्या हुआ. You can check with ACC मार्च का फरवरी एक्सपायरी में मैंने जो मार्च की फाइल दी थी उसमें क्या हुआ था. एंड ये रिमार्क्स मैंने इसमें भी दिया हुआ, आप देखिए अदानी एंटरप्राइज में मैंने लिखा है द मोस्ट वोलेटाइल स्टॉक ऑफ दिस एक्सपायरी. ठीक है, तो आप लोग को ये सब चीज पढ़ना चाहिए. एंड आई विल बी हैप्पी टू सी कि हाँ पीपल लर्न एंड इंटरप्रेट दिस, एंड अगर उनके कुछ सुझाव है तो दैट विल बी मच मोर वेलकम, एंड आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोस एंड द एक्सेल सो दैट इट विल बी इजी कि हर कोई इसको समझ पाए, हर कोई इसको अपने कोशिश करे इसको अपने डे टू डे ट्रेडिंग में या पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए. ओके, तो this is all about the quant sheet, how to read this, and I'll take any question. If anyone has any questions related to do, please note it down, and after I complete the session, I'll take the questions one to one. Okay. Okay. Now coming back to the second topic, which is charts. Hello. You're visible. Charts. Basically, we all use charts on a daily basis. तो नॉर्मल चार्ट्स तो सब यूज करते हैं, जैसे इंडिकेटर्स आप ये देख लीजिए, इसको बोलते हैं व्हाट यू कॉल SMA. भैया चेंज. Is it showing? Visible. दिख रहा है? These are the two moving averages which is plotted. One is in blue and one is in this color. This is the 200-day moving average and this is the 50-day moving average. ये सब indicators को हम लोग day to day follow करते हैं. But there's some other indicators which I use particularly, which is basically like that, which is called आप trading view में अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा anchored VWAP. Can you see, Shyam? हाँ. So anchored VWAP is nothing. It's VWAP क्या होता है? VWAP is basically the volume weighted average price. कि पूरा सपोज मेरे को 15 दिन का VWAP निकालना है. 15 दिन का VWAP मीन्स 15 दिन में निफ्टी फ्यूचर्स एवरेज किस प्राइस में काम किया है. फॉर एग्जांपल निफ्टी ने लास्ट 15 दिन में 18,200 से लेकर 18,900 तक ट्रेडिंग की है, एंड उसमें हो सकता है 1 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है निफ्टी फ्यूचर्स में, बट उसकी एवरेज प्राइस जो है उसको कहते हैं अपने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. कि अगर 18,200 पे 1 लाख क्वांटिटी का काम हुआ है, 18,300 पे 5 करोड़ शेयर का काम हुआ है, वॉट एवर, तो वॉल्यूम इंटू प्राइस
टोटल वॉल्यूम एक वॉल्यूम आता है एंड दैट वी डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इज कॉल्ड द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, तो जब भी मार्केट कभी नया हाई बनाता है या लो बनाता है वहां से एक रिवर्सल होता है, तो वी टेक रिवर्सल पॉइंट, जैसे यहाँ से इसने एक बॉक्स बनाया था यहाँ से फिर इसने रिवर्सल किया, तो मैं इसको मानता हूँ कि एक पॉइंट ऑफ रिवर्सल हाई ताला। तो अब मुझे देखना है कि यहाँ से अगर करता है तो ये नीचे कितना जा सकता है और ऊपर कितना जा सकता है, इसको मैं एक बैंड बना देता हूँ। तो आई यूज दिस, आई जस्ट रिलेट दिस, I'll relate this out. अभी अपने को समझना है कि यहाँ से ये जो लो बना है यहाँ पे, यहाँ से एंकर वीवैप क्या बोलता है, आपको ये रेंज मिल जाए, विच इज बेसिकली यहाँ ये एक बैंड है। तो आपको मालूम है कि इसके ऊपर अगर चल रहा है ब्लू लाइन, दिस मिडल लाइन इज द वीवैप लाइन एंड ऊपर और नीचे वाले इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन लाइन। तो once it's above the blue line, you'll see कि हाँ it's slowly moving and orange line के आसपास ये वापस resistance फेस कर रहा है, and people indicates along with it to get a view कि हाँ market is exhausting or whether market is on a uptrend. So this is one tool. Then there is another tools which you can use is a simple, many people use that, which is called the Fibonacci. But I'll say one should use a Fibonacci 10-base extension, which is like, I'll just take this. यहाँ से इसने किलो बनाया था, see this is how it works. आप इसको एक्सटेंशन को अगर डालोगे, एक सिंपल चीज है कि यहाँ आप या तो there are many ways to draw it. The simplest is कि आप इसको एक्सटेंशन को जो रिसेंट हाई है यहाँ से आप इसको लो पे क्लिक करो एंड यू जस्ट टेक दिस, यू विल गेट कि हाँ एक्सटेंशन जो है वो कहाँ जा रहा है। यू विल सी 18,934 इज द जीरो लेवल, मतलब आप देखोगे ये जो हाई जो भी बना है वो अभी लेटेस्ट जो बना था हाई दैट वाज ऑन अराउंड 18,881 और 18,886. So until unless it crosses 18,934, you not see कि यहाँ there is a big तेजी बाजार में। अब सपोर्ट कहाँ पे आता है, 629 पे है, 440 पे है, 287 पे है, 134 पे है। This you can use with the quant models and you can use for your trading and other purpose. तो चार्ट्स में और भी बहुत सारे एडवांस है वर्जन्स है which I'll share in the group and how to do that, use that on a daily basis. Piyush is doing an excellent job. Piyush Khaitan is doing an excellent job by using ChatGPT for creating advanced what you call charting tools. क्योंकि क्या है ना, what you call trading view में there's a option called, this is a Pine editor where you can write your own coding. Not everyone is aware how to use the code and not I myself is not aware know how to use code. हर किसी को कोड राइटिंग नहीं आती, मुझे भी नहीं आती है, बट आजकल एआई का जमाना है एंड अरुण भैया कैन वाउच फॉर इट and he was the first person who has introduced us to the ChatGPT long back.
जब चैट जीपीटी हेड भी नहीं हुआ था तब अरुण भैया ने हम सबको इंट्रोडक्शन दिया था, एंड बहुत ही सुंदर क्लास ली थी वेबिनार पे, एंड वी वर वेरी, it was a very helpful session, and I'm thankful to Arun Bhaiya for introducing us to ChatGPT. And Piyush Khatan is doing a wonderful job, and I'm also working with him on few projects to create indicators which will help us in our day-to-day trading, and that will be shared as we develop the tools. And आपको कुछ नहीं करना है, वो जो आपको हम कोडिंग देते हैं, आपको यहाँ पे खाली पेस्ट करनी है, सेव करनी है, and then add to chart, and that coding will be shared over here. It's as simple, and you can do a back testing and everything, and you can see कि हाँ how it has worked. आप उसको जब प्लॉट करेंगे आप उसका देख सकते हैं लास्ट एक साल में क्या परफॉर्मेंस रहा है, 2 साल में क्या परफॉर्मेंस रहा है, 3 साल में क्या परफॉर्मेंस रहा है, आपको सब चीज दिख जाएगा. तो how artificial intelligence is helping us in chart and how to do coding and all, which is not everyone's, मतलब हर कोई कोडिंग नहीं कर सकता जैसे मैंने पहले बताया. AI is a very good tool, and this can be used for creating your own indicators. So this is about charting the quant model. I'll again come back to the third point. Sorry. Is it clear? Yes. आप देख सकते हैं ये? So next screen share. The topic is share valuation using present value and future value model. Okay. तो आज कोई भी शेयर्स हम लोग जो वैल्यूएशन करते हैं, we should know that आप अपने कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आज कोई भी when we are buying shares means what? हम शेयर्स खरीद रहे हैं, इसका मतलब हम शेयर कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, whether we are buying 1 share or 10 shares, it doesn't matter. हम उस कंपनी में एक बिजनेस में एक पर्टिकुलर परसेंटेज हिस्सा ले रहे हैं. आज हम किसी के भी, अगर सपोज कोई आता है आपके पास, बोलते हैं कि मैं एक काम चालू कर रहा हूँ, एक रेस्टोरेंट चालू कर रहा हूँ, आप मुझे मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कीजिए, एंड आई विल गिव यू 10% इक्विटी. तो आप ऑब्वियसली यू वांट टू नो, आप तो खाली ऐसे उनको 10 लाख रुपया नहीं दे दोगे ना, आप उनके बारे में जानोगे, उनके बिजनेस मॉडल के बारे में जानोगे, बिजनेस वैल्यूएशन के बारे में जानोगे, एंड उसके फ्यूचर के बारे में जानोगे, क्या रिस्क है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, आदमी कैसे है, बहुत सारी चीजें जो हमें जाननी चाहिए. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या हुआ था प्रोमोटर्स एंड हाउ आर दे, उनकी पुरानी हिस्ट्री कैसी है, इंडस्ट्री का आउटलुक कैसा है, तो इंडस्ट्री विच दे आर इनटू, उस इंडस्ट्रीज में क्या अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, बहुत सारी चीज है जो आपको जाननी चाहिए. एंड कोई भी कंपनी जो है वो हर क्वार्टर में अपना रिजल्ट लाती है, अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करती है, अपना एनालिस्ट मीट होता है, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ब्रोकर्स रिपोर्ट विच कम्स आउट. तो आपको उनको पढ़ना है एंड हाउ टू इंटरप्रेट दैट, आपको वो भी समझना चाहिए, एंड हाउ इट कैन बी यूजफुल. मैं एक सिंपल मेथड आपके साथ खाली ये शेयर करना चाह रहा हूँ. इज द एक्सेल क्लियर टू एवरीवन? थोड़ा सा भैया इसका फॉन्ट बढ़ा लीजिए. हाँ, फॉन्ट बढ़ा देता मैं. रिलायंस 2016 में इसके ईपीएस थी 43 रुपीज 30 पैसे. हेलो, रिलायंस इंडस्ट्री की जो अर्निंग पर शेयर जो आती है बैलेंस शीट में, जो आपको यहाँ से दिख जाएगी. मैं आपको अगेन स्विच द स्क्रीन. This is screener.in, Reliance Industries Limited. You go downside, 2016 मार्च को इसकी अर्निंग थी 43 रुपीज 03 पैसा अर्निंग पर शेयर, व्हाट यू कॉल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड.
एंड आप देखेंगे कि इसकी अर्निंग जो है 32 से 34, 30 से 32, 28 से 30, 43 से 43, 43 से 53, ठीक है। दिस 43 से जो थी एक अर्निंग पर शेयर जो होती है, उसके क्या ग्रोथ रेट है उसको अपने पी रेशियो बोलते हैं। अगर ये 10% से ग्रो करिए तो इसकी पी इज 10, जो उसकी ग्रोथ रेट है दैट शुड बी द पी, बट मार्केट एक्चुअल पी पे ट्रेड नहीं करता है, वेदर इट ट्रेड्स डिस्काउंट टू द प्राइस टू अर्निंग एंड और वेदर इट विल ट्रेड एट अ प्रीमियम टू प्राइस टू अर्निंग, बट कहीं ना कहीं जाके वो रियल वैल्यू पे आके मर्ज करता है वापस। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा उसी का, सॉरी द स्क्रीन। एक चीज और साथ में दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ मार्च जो थी, मार्च 2016 रिजल्ट जब आया था, दैट वाज समवेयर अराउंड जून के आसपास रिजल्ट आया था, 500 के आसपास उसका भाव था, ठीक है। तो आई जस्ट गो बैक टू आपको लेना है रिलायंस की ईपीएस थी 43.03, प्राइस था 515 रुपया फॉर एग्जांपल। प्राइस टू अर्निंग इज नथिंग, आप देखेंगे दिस इज प्राइस को अगर आप अर्निंग से डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं पी रेशियो, जो हमने सुना होगा पी रेशियो, व्हाट वी कॉल पी रेशियो। जैसे हम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर इनटू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म भी वो व्यू लेते हैं, तो देखना चाहिए कि वो इट्स अ ओवर वैल्यूड स्टॉक और अंडर वैल्यूड स्टॉक और नॉट। हमने उस समय रिलायंस जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द जियो एंड एवरीथिंग, तो हमें लग रहा था कि आने वाले नेक्स्ट 5-10 साल में ये अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है एंड इसमें एक अच्छा ग्रोथ आ सकता है। हिस्टोरिकल हमने उसका एक एनालिसिस किया था, तो स्टॉक हैज एन एवरेज अर्निंग ग्रोथ ऑफ 18%, जो उसकी हिस्टोरिकल ग्रोथ थी। तो मैंने एक अजम्पशन लिया कि 18% ग्रोथ ये नेक्स्ट 10 ईयर्स में करेगा हर साल। तो 2025 तक इसकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए पर शेयर, उसका एक फॉर्मूला है जो मैंने डाल दिया है। आप प्रेजेंट वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते हैं 18% CAGR के साथ, तो आपको अर्निंग आ जाती है 225 का 21 पैसा इसका दाम होना चाहिए, अर्निंग होनी चाहिए। एंड मैं अगर 11 की पी रेशियो लेता हूँ, इस अर्निंग को मैं 11 रुपया 96 पैसा से करता हूँ, तो 2025 तक इसका भाव होना चाहिए 2695। बट चूंकि अगर आप आज के दिन में देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज को और शेयर स्क्रीन, इज द स्क्रीनर क्लियर? हेलो, Yes. अच्छा। अभी आज के दिन में आप देखेंगे 25 का पी चल रहा है, इसका स्टॉक पी 2550। तो मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ 18% ग्रोथ और इसको मैं डालता हूँ, क्योंकि अभी 2023 चल रहा है, तो पीपल विल बी डिस्काउंटिंग 2025 और 24 अर्निंग, ठीक है। तो आज के दिन में अगर इसका 25 का पी चल रहा है एंड तो 2025 में इसका दाम होना चाहिए 4991, फॉलो, Yes. राइट। बट Excel हाँ, भैया, switch एक्सेल, हाँ। अगर मैं 26% अर्निंग के हिसाब से इसको डालता हूँ, जो उसकी 26% ग्रोथ है, सॉरी, हाँ, सॉरी, कंट्रोल जेड, मैं इसका अगर पी को 26 लेता हूँ, इसका दाम होना चाहिए 5855, बट दिस इज रियली विच इज बिजार, क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं है। अपने को अब ये देखना पड़ेगा इसकी एक्चुअल अर्निंग ग्रोथ कितनी हुई है लास्ट 5 साल में। कल अगेन कम टू द सेम थिंग, रिलायंस इंडस्ट्रीज में शेयर प्राइस में कि 43 रुपीज वाली चीज जो है, जो अर्निंग थी पर शेयर, वो बढ़ के ये 98 रुपीज ही आई है मार्च, विच इज नॉट up to the mark which we are expecting. So now we do again calculation. यहाँ अगर
मार्च 2023 में इसकी 98 रुपीज़ की अर्निंग है, और से सपोज इसका 18 का पी है, सॉरी EPS इन 2023 इज 98। मैं इसको 2 साल का पकड़ता हूँ, और पी अगर 26 की है, वी टेक अ बेस केस की यहाँ अगर इसकी पी 23 भी रहेगी तो इसका प्राइस होना चाहिए 3138 इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। currently it's trading at around 24-50 के आसपास। तो we can see कि यहाँ कंपनी has a potential to go, यहाँ से 20% 25% का रिटर्न दे सकती है नेक्स्ट 2 ईयर्स, और 30% का रिटर्न दे सकती है नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो दिस इज हाउ वन शुड डू अ वैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की, हाँ कैसे, whether the share is overpriced or underpriced। इसी हिसाब से अगर आप चार्ट पे उसको शेयर चेक करेंगे इसका, तो रिलायंस आप देखोगे, जस्ट एक 5 ईयर चार्ट, आप देखेंगे 2780 तक जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है 2400, फिर 2700 जाता है, फिर नीचे आ जाता है 23, फिर 2600 जाता है, फिर नीचे आ जाता है 2200-2300 में। तो whenever you are seeing a range, आपके पास वो एक्सेल शीट खुली रहनी चाहिए हमेशा कि यहाँ इसकी रियलिस्टिक वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए। ये हर क्वार्टर में जब रिपोर्ट्स आती है ना, तो सरप्राइज करती है, कभी अच्छा ग्रोथ होता है, कभी ग्रोथ खराब होता है। आपने कभी कभी देखते हैं कि हाँ रिजल्ट्स आने के बाद रिजल्ट अच्छा है लेकिन शेयर प्राइस गिर गए, क्योंकि रिजल्ट्स ऑलरेडी डिस्काउंट होना चालू हो जाता है रिजल्ट आने के बाद, आने से पहले, और रिजल्ट्स अच्छा आने के बाद वो शेयर प्राइस गिर जाता है। एंड कभी कभी उल्टा होता है कि हाँ रिजल्ट्स खराब आते हैं लेकिन शेयर प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि रिलायंस रिजल्ट आने से पहले ऑलरेडी मार्केट उसका डिस्काउंट नेगेटिव जो आना था वो डिस्काउंट कर चुका था, एंड रिजल्ट्स आते ही वो बढ़ जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये इसकी फेयर वैल्यू ये होनी चाहिए, एंड आज ये मुझे 25%, 30% या 40% डिस्काउंट में अगर मिल रहा है, तो वेदर आई शुड बाय एंड होल्ड दिस शेयर फॉर माई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो और नॉट। मैंने एक छोटी सी चीज उसमें ऐड नहीं की, मैं आपको खाली सिंपल दिखाना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि मेरे को करनी चाहिए थी। 43.03 was the price, 515 was the price that time. I'll switch. The EPS growth was 18%. EPS was 59. EPS in 2019 18%. ये 10% ये, ठीक है। एंड हम अगर 18% का ग्रोथ है तो हम मानते हैं मिनिमम इसकी 18% की पीई तो रहेगी। 4053 शुड बी द प्राइस इन 2025। अगर हम 2016 में बैठे हुए हैं और हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें इस शेयर्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है कि नहीं, तो अब 2025 में आपको मालूम है कि इसकी दाम होनी चाहिए 4053 रुपया। एक चीज होती है उसको बोलते हैं अपने प्रेजेंट, हाउ टू डू अ पीवी ऑफ एफबी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू इन 2016। मतलब जो फ्यूचर वैल्यू हमने निकाली है 2025 में शेयर्स की ये फ्यूचर वैल्यू होगी, उसकी आज के दिन में क्या वैल्यू है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं है, जिस हिसाब से हमने फ्यूचर वैल्यू निकाली है उसका रिवर्स करना है हमें। इसको हम करेंगे पीवी, आपका रेट रेट जनरली डिस्काउंटिंग रेट जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीसेक इल्ड होता है। जीसेक इल्ड 2016 में करीबन 8% के आसपास चल रही थी, तो मैं 8% लेता हूँ कि 8% डिस्काउंटेड रेट है। 10 साल का पीरियड था, ले लिया हमने। पीएमटी इज 0 एंड फ्यूचर वैल्यू क्या था एज पर द मॉडल 4053, तो हमने इसको डाल दी। आप देखोगे ये की वैल्यू होनी चाहिए 1877 रुपया, शुड बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर वैल्यू।
तो हमें मालूम है कि आने वाला नेक्स्ट 3-4 साल में कहीं भी गया तो ये शेयर 3-4 साल में 5 साल में 1877 मिनिमम इसका दाम होगा। और आज के दिन में ये हमें कितना डिस्काउंट में मिल रहा है? इफ यू टेक दिस इज 2016 में ये कितना परसेंट पे चल रहा था? इट इज was been quoting at 27% of the actual fair value of the Reliance। तो हम जान सकते हैं कि हम ये इससे एक चीज पता चलता है कि हाँ ये इट्स अ वैल्यू बिजनेस। हो सकता है शॉर्ट टर्म में ये प्रॉफिट नहीं दे, बट लॉन्ग टर्म में इट विल बी ए मल्टी बैगर। एंड आपने देखा है कि 515 से कैसे इसने 5-7 साल में ही इट हैज बिकम अ 2800 रुपीज स्टॉक। तो और हमें क्या चाहिए? कोई भी शेयर अगर 5 साल 6 साल 7 साल रख के हमें 6 गुना 7 गुना पैसा मिल रहा है बाय यूजिंग सिंपल मैथमेटिक्स मॉडल, तो वी कैन कंट्रीब्यूट कि हाँ इस हिसाब से हम एक क्या कर सकते हैं कि हाँ वी कैन पुट 10% ऑफ आवर इक्विटी और 5% ऑफ आवर पोर्टफोलियो या 20% अपना पोर्टफोलियो इसमें डाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द आउटलुक ऑफ द इंडस्ट्री एंड द शेयर प्राइस एंड द वैल्यूएशन एज आई हैव शोन। ऐसे हम और भी शेयर कर सकते हैं। एक चीज मैंने नोटिस किया कि मेरे साथ भी होता था और बहुत लोगों के साथ होता होगा आज भी। लोगों के पास 100, 150, 200 स्टॉक्स पड़े हैं उनके पोर्टफोलियो में। कब प्राइस आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब उन्होंने उठाया, कब बेच दिया, कुछ नहीं मालूम है। और उनको ट्रैक करना भी इजी नहीं है। तो दिस मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि हाँ 70% आप अपना पोर्टफोलियो लार्ज कैप में रखिए। वी शुड बी लिमिटेड टू 10 to 20 stocks or 30 stocks, and balance आप keep on doing into mid cap and other things which will generate alpha for you. This is how ये मॉडल मैंने बनाया है शेयर वैल्यूएशन का। दिस आर शेयर इन द ग्रुप आल्सो इन द एक्सेल फाइल एंड पीपल कैन वर्क आउट ऑन इट। इस पर अपने साथ अपना पुराना डेटा लेके स्पिनर से अपने हिसाब से एक अर्निंग ग्रोथ लेके they can test, they can do a back testing कि कैसे ये काम किया है, कैसे ये पीछे में काम कर सकता है, आज के दिन में कौन सा शेयर वैल्यूएशन सही है या पीछे में कैसे शेयर वैल्यूएशन ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है। आपको वो सब चीज़ देखना है। बहुत सारे शेयर्स होते हैं उनकी वैल्यूएशन अलग तरह से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आई टॉक अबाउट एशियन पेंट्स। अब एशियन पेंट्स और आई टॉक अबाउट अ कंपनी कॉल्ड अपोलो टायर। अपोलो टायर और एशियन पेंट्स के इसके रॉ मटेरियल इज क्रूड। अब क्रूड के प्राइस गिरेंगे तो ऑब्वियसली एशियन पेंट्स और अपोलो टायर्स के दाम बढ़ेंगे। तो आपको समझना कि कमोडिटी के प्राइस बढ़ने से किस कंपनीज के कौन सी कंपनी है जो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स है एंड कौन सी कंपनी है जो उस कमोडिटी को कंज्यूम कर रही है। जैसे ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो ओएमसी जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, रिलायंस इनको फायदा होगा या ओएनजीसी को फायदा होगा, ऑयल इंडिया को फायदा होगा। बट अगर उसके दाम गिरेंगे तो फायदा किसको होगा? अपोलो टायर को होगा, आपके एशियन पेंट्स को होगा। इस सब कंपनीज है। दीज आर थिंग्स व्हिच वी शुड द बेसिक्स व्हिच वी शुड नो। एंड इसके लिए आई मेक अ डिटेल प्रेजेंटेशन एंड आई शेयर इन द ग्रुप सून। इसके अलावा अब I'll just share the screen again. Okay. But श्याम दिख रहा है सर? yes भैया। Okay. The fourth topic जो है, this is a very important thing कि one should किसी को भी जो है अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कोई कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन दे दिया। इफ पीपल डजंट नो कॉल एंड पुट दे शुड नॉट प्ले विद दोज स्ट्रैटेजीज। टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए until unless you learn about those strategies. There are many platforms through which you can learn and I'll share the best is मैंने जो देखा है अपने स्कूल के ही विपिन भैया का स्टॉकेज है। स्टॉकेज के थ्रू उनकी यूट्यूब पे काफ़ी सारे उनके वीडियोस है, आप उन पे जा सकते हो। आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीख सकते हो वहाँ से और यू कैन टेक क्लासेस। मेरे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है लोगों से कि हम लोग लाखों करोड़ों के पोर्टफोलियो, आई डोंट वांट टू मेंशन एनी फिगर, किसी के पास कुछ भी हो सकता है,
But out of that, even if you can contribute 1% towards learning, that will be the biggest asset, because आप वो जो 1% अपना पैसा जो लर्निंग में डाल रहे हो ना, you might never know कि उस 1% पैसे से, चाहे वो 1000 रुपया हो या 5000 रुपया की कोई क्लास हो या 200 रुपये की कोई क्लास हो या कुछ भी हो, कहीं पे भी आप उसको अटेंड कीजिए, आप उसको सीखिए। हो सकता है 10 में 2 ही काम आएगी, बट वो जो 2 काम आएगी वो आपके लिए लाइफ में बहुत बड़ी आपके लिए चेंज हो जाएगी। तो लर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आप जब तक सीखते नहीं है कोई चीज़ को, आप उसको इम्प्लीमेंट मत कीजिए, क्योंकि यू नेवर नो कि हाँ शॉर्ट टर्म में आपको पैसा दे देगा, बट लॉन्ग टर्म में आपसे पैसा लेके जाने में उसको 1 मिनट लगेगी। तो आपको अपने रिस्क के हिसाब से अपना करना चाहिए। देयर आर मेनी एसेट क्लासेस लाइक इक्विटीज है, डेरिवेटिव्स है, ऑप्शंस है, डेट मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है। हर चीज के रिटर्न्स जो है इट्स बेस्ड ऑन देयर रिस्क, एंड इट्स डिपेंड्स ऑन वन ओन रिस्क कि हाँ आपकी क्या रिस्क है, आपकी क्या टारगेट्स है लॉन्ग टर्म, उस हिसाब से आपको उतना रिस्क लेना चाहिए, एंड उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी एंड अपना एसेट एलोकेशन करना चाहिए। नाउ द फिफ्थ एंड सिक्स्थ asset allocation is also an important part of this, which I said कि हाँ अगर आपके पास X amount है, say I say 100 rupees is there with a person, so obviously you will not put everything 100 rupees into one particular asset. आपको 100 रुपया को अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एंड प्लस एज पर योर कैश फ्लो, हो सकता है उसमें से कुछ पैसे आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, कुछ पैसे आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, कुछ पैसे आपको एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म बाद चाहिए, जैसे 20-25 साल बाद चाहिए। उस हिसाब से अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको अपनी लिक्विडिटी मैनेज करने के हिसाब से करते हुए आपको अपना एसेट एलोकेशन डेट, इक्विटी एंड अदर एसेट क्लास में करना चाहिए, whether it can be real estate, whether it can be any asset class, gold, silver, anything. It depends on that. So asset allocation is the key, and if you manage your risk with and do the asset allocation, you'll get a very good result over a long term. क्योंकि शॉर्ट टर्म में शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, सब चीज लॉन्ग टर्म में ही होती है। हमको भी इस लेवल तक आते आते सीखते सीखते एवरीथिंग इज अ लर्निंग, एंड हर दिन आदमी कुछ ना कुछ नया सीखता है। एंड आप सोचोगे, आपने खुद बहुत जन है हमारे ग्रुप में जिन्होंने आज से 20 साल 25 साल पहले बिजनेस चालू हुआ था, और आज वो बहुत धीरे धीरे ग्रो किया, बट आज के दिन वो इतने एक्सपोनेंशियल ग्रो करके हैं कि वी डोंट नो। तो इट टेक्स टाइम, इट्स नेचुरल। जैसे प्लांट भी जो है, अपने छोटा सा बीज लगाते हैं, उसको भी बड़े होते होते टाइम लगता है। तो बट हाँ, उसको राइट एनवायरनमेंट देना, उसका ठीक से देखभाल करना, ये आपके हाथ में है, क्योंकि आपका जो पैसा है इट्स योर दैट मनी प्लांट। You have to give it the right environment, the right nutrients, and also the right, आपको टाइम टू टाइम उसका देखभाल करना है। एंड फाइनली आज के दिन में क्या है, आई एम कमिंग टू द लास्ट पॉइंट विच इज द इंश्योरेंस एंड SIP एंड टर्म प्लान। आज के दिन में आप देख रहे होंगे बहुत सारे बैंक्स वाले हैं जो घूम रहे हैं, आपको बोल रहे हैं 10 साल की पॉलिसी ले लीजिए, आपको 10 साल में इतना पैसा देना है, एंड उसके बाद आपको 13 साल 15 साल बाद आपको इतना पैसा हर महीना करके मिल जाएगा, एंड यू आर गोइंग टू गेट अ 7 to 8% टैक्स फ्री रिटर्न। और कहीं कहीं कुछ कुछ बैंक्स वाले हैं जो बोलते 10% 12% आपको यील्ड आ जाएगी। तो मैं आपको एक सिंपल चीज बता देता हूँ कि ये इंश्योरेंस जो होता है ना, आप इंश्योरेंस को कभी इन्वेस्टमेंट के साथ लिंक मत कीजिए। इंश्योरेंस हम क्या चीज के लिए कराते हैं, जैसे कार इंश्योरेंस हम किस लिए कराते हैं कि अगर गाड़ी में कुछ हो गया तो गाड़ी का जो लॉस है वो मिल जाए। हम इसलिए थोड़ी ना कराते हैं कि अगर गाड़ी को कुछ नहीं हुआ तो ये पैसे हमको वापस मिल जाए। सेम इज विथ मेडिक्लेम कि अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आई शुड बी कवर्ड। सेम इज विथ अदर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इज ऑल्सो विथ दैट। तो हम खाली लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम आज तक इंडिया में, इट्स नॉट आवर फॉल्ट, इट्स द वे इट्स बीन सोल्ड इन इंडिया, इज इट्स ऑलवेज बीन सोल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। कि हाँ आप भैया किसी के घर में बच्चा हुआ तो बेटी हुई तो बोले कि भैया इसके नाम से 5 लाख की LIC खोल दो, तो वैसे ही बेचा गया है, एंड आज तक वही हो रहा है। बट देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। तो एंड आपको लॉन्ग टर्म में एक्चुअली में जब आपको इंश्योरेंस की दरकार पड़ती है, आप देखेंगे उस एज के बाद आपके पास इंश्योरेंस है ही नहीं, विच इज आफ्टर 50 till age 75, when you are towards the end of your
retiring period and going to retire, सब आपको वो इंश्योरेंस की दरकार पड़ती है, बट उस समय तक आप देखेंगे आपकी जितनी टर्म पॉलिसी सब खत्म हो चुकी है। तो जितनी भी आपकी टर्म लाइफ पॉलिसी है वो खत्म हो जाती है। तो प्योर टर्म प्लान जिसको मैं बोलता हूँ, आप लाइफ को कवर कीजिए एंड साथ में जो बैलेंस है उसका आप SIP में या आप जैसे भी आप करते हैं उसको कर दीजिए। तो दिस इज एंड इट विल गिव यू अ फिनोमिनल रिटर्न and you can do a testing. I'll make a presentation of this also and I'll share the group soon कि हाँ SIP के बीच में, टर्म प्लान के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या रिटर्न आ रहा है लॉन्ग टर्म में, उसका भी मैं एक एक्सेल फाइल बना के एक प्रेजेंटेशन बना के मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ। नाउ I'll like to thank you all for being such a lovely audience and I'll request Shyam to please open the house for question and answer. Yes, thank you, Bhaiya. So we have many questions on chat box, but हम लोग क्योंकि interactive करना चाह रहे हैं, तो let's keep it simple और एक-एक करके if we can raise hand or if we can unmute, तो एक-एक करके we can start questions. हाँ तो श्याम आप खाली इसको ट्रैक कर लो ना कि अनम्यूट कैसे करना है। मैं कर रहा हूँ। So पारस भैया ने सबसे पहले हाथ उठाया है। पारस भैया, you can unmute. Hi Paras. Yeah. Hi, sorry, camera active नहीं है. Thanks a lot for the presentation. जो font बात कर रहे हैं, it is just amazing, fabulous. Paras, can you be a bit loud? Is my voice clear now? थोड़ा break हो रहा है. Is it clear now? Am I audible now? Yes. Yeah, good enough. Super, thanks. तो गुरुजी आपका जो font based approach है. पारस भैया please, मैं धनपत हूँ, call me धनपत हूँ. अरे बस फिगर ऑफ स्पीच प्लीज, क्योंकि हम इनफॉर्मल ऑडियंस ग्रुप है, नोपानी ग्रुप है, तो वो आवाज वो बात भी वैसे ही निकलेगी. यू आर जस्ट फैबुलस विद द वे यू वर्क विद नंबर्स, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. यू आर ब्रिलियंट एट शेयरिंग इट आल्सो. वापस थैंक यू. आप अगर ये जो मॉडल है इसका एक हल्का सा बेसिस का कोई एक बैकग्राउंड दे सकेंगे? आई एम श्योर इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ इयर्स टू गेट दिस डन, तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है कि ये नंबर्स आ कहाँ से रहे. एक हल्का सा अगर आइडिया देंगे तो विल बी ग्रेट. इफ इट इज प्रोप्राइटरी और something which should not be shared, I appreciate that, but I can't thank you enough. You are brilliant. I'll say it's based on the market data on which the market activity happens. Hello. Yes, audible भैया. Am I audible? Yes. Paras, thanks for your question. This is proprietary and I've worked almost over 10 to 15 years to create this and still working on it to make it helpful. But this is based on a lot of quantitative analysis, a lot of maths, and most of the data which I take is from the market only. जो market में real time activities होती है उसी के data से उसको मैं कैसे use करता हूँ. It's based on a lot of statistical and mathematical calculation which has been backtested over last 10 to 15 years. And over 20 years जब से डेरिवेटिव मार्केट्स आया है मार्केट में तब से मैंने उस पर टेस्टिंग किया है एंड देन आई हैव कम ऑन दैट. दिस इज नॉट बेस्ड ऑन एनी हाइपोथेटिकल और एनी डेटा. दिस इज बेस्ड ऑन रियल मार्केट डेटा व्हिच वर्क्स ऑन द मार्केट एंड व्हिच हेज फंड एंड अदर फंड मैनेजर्स यूजेस. उनके कुछ मैथ्स और उनकी कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस मैंने यूज की है. तो इस पारस भैया, एम आई बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन? Paras भैया. Unmute. You have to unmute him. Yeah, thanks. That answers my question pretty well. Thanks a lot. I understand that there be a lot of effort which has gone behind it, पर मैं समझ रहा हूँ कि काफी मैथमेटिक्स है इसके पीछे. Thanks a ton. I'll sure try to make it live, and it will take some time, but I'll make it live soon. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you for giving your time, valuable time on Sunday. Thank you, Paras भैया. Sunil भैया, please go ahead. Hey, thanks, Shyam. Thank you, Dhanpat, for the session. It was really awesome. So you talked about a couple of things in between, like trading over spreads and option strategies, right? Can you share some
names of good books that we can read or some training that you are aware in the market, which we can take to understand how to use them basically practically? Okay. Maybe you don't have to answer it right away. You can put it in the group chat whenever you're free. I mean, I just want to get a clear thing. You want to books on what? You want on option trading or option portfolio strategies, yeah, put call, whatever the spread trading that you talked about, or other types of trading which are like pair trading. What if there are some books that good books that we can read and gain expertise? So, Shri, if you can, I'll just request you if you can just jot down a list and message in the group, or you can DM me also, and I'll Sure. I'll keep you posted, and also the group posted about the links. And अगर होगा तो मैं book share भी कर दूँगा PDF version में. Awesome. ठीक है, I'll do that. No Anything problem. else about the market? No, I think so. I am not from a financial background, but I've being from this Nopany background and being aware of the finance, did MBA in finance. So I'm aware of what technical fundamental this trading is. So let's say expertise have gained over the years, but experience is coming from you and the group. So I'm trying to leverage that. Thanks. I'll definitely share, and I hope you soon will be आप खुद जल्दी expert हो जाओगे ताकि आप भी group में contribute करो. And that's what the motto is of this learning session. कि we all should be expertise. We should all learn and come up to the curve and contribute more towards the group. Absolutely. Yep. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Sunil bhaiya. Arvind Bhaiya, you can please ask. Okay. So Dhanpat, nice session, lot of takeaways, lot of learnings. So several points that I really learned today changed my way of thinking. So I am senior to you, but from a point of stock markets, I'm still too junior. I started into stock markets only post-COVID. So a lot of learnings yet pending. So this group is doing awesome job for, at least for me, I know. So a lot of takeaways I'm getting. So one quick question here was, in the Excel spreadsheet, I do a lot of number crunching from the background I come from. So मैंने जो देखा Excel में, आपने लिखा था कि all the numbers were future numbers. So say for example, आपने अभी जैसे अगर Monday को if you give a number, will it be for the June future or July future? June future. So current month, future, right? मतलब end of the month में भी है तो भी आप end of the month में मैं डाल रहा हूँ जो जैसे मैंने जून में जो डाला है मई 25 को एक्सपायरी हुई थी. हेलो. हाँ. तो मैंने जून की एक्सेल फाइल डाली थी तो दैट इज फॉर जून एक्सपायरी फिगर्स. ओके. तो जून के फ्यूचर्स थे. तो आई शुड ऑलवेज assume it as a current month numbers. Current month numbers, right? वही पूछना था. So otherwise, I'm learning a lot from this group, including you. Likewise. And आप लोग है बोल के it gives us more motivation to keep posting in the group and sharing. Yeah, I'm to come to that level so that I can add value in this group. So, we are definitely looking forward to it, and if I can be of any help to you, please do let me know. Sure. Thank you. Thank you. Thank you. Rohit Bhaiya, हाँ भैया. please unmute. Hello, Dhanpat भैया. You are audible. Yeah. Lovely session, Dhanpat भैया. Great learning on a lazy Sunday. Thanks, Rohit. Please suggest some term plans which we can go for. Whenever you get time, not right now necessarily. Rohit, this has to be done as per one's risk profile, and doing your risk profile, I can suggest a good term plan, and how to do that also I can suggest you, right? Because it's part of managing the risk. Hello. Yes. Like if a person has a liability, I'm just giving a small example. If a person has a home loan of 40 lakhs, so he has a liability. So we have to look into account की उसकी अभी क्या liability है और future में क्या liability है. जैसे you might be having children, उनकी पढ़ाई के बारे में आपको सोचना है, उनके शादी के बारे में सोचना है, आपके future income है, उसको हमें discount करके लाना है. उससे आपसे we have to find a valuation and then we have to suggest क्या अब ये जो मेरी वैल्यूएशन आ रही है उसके हिसाब से मुझे कौन से कंपनी की टर्म पॉलिसी अच्छी मिल रही है, किस कंपनी पे हमें भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उसका एक रेशियो भी हमें दिखता है ना कि हाँ इसका
वी नेवर वांट कि वो टर्म पॉलिसी मैच्योर हो, हम चाहेंगे वो पैसा डूब जाए, कोई भी नहीं Correct, चाहेगा कि correct. वो मैच्योर हो। Hmm. बट इन केस ऑफ एनी मतलब अनफॉरगिवन और फॉरगिवन situation, we should compare. First, we have to assess how much should be the life value, and accordingly, we have to look at 2-3 companies, good companies, which are there from years and who are giving good services and which are reasonably cheap on both Yes, yes, parameters. yeah. मतलब on the left side of the menu also we have to look, and on the right side of the menu also. Correct, correct, correct. ठीक है भैया, I'll connect with you for this. Okay, thank you Okay, for being. thank you भैया. Thank you, Rohit bhai. Rishabh bhaiya. Thank you, Sham, and thank you, Vidyalaya, for the lovely session. Thank you, Rishabh, for taking out time. Hi. For me, Dhanpatya reminds me of a person sitting in a hall and looking here and there for answers during examination. Actually, तो धनपत भी आपने जो एक्सेल शीट शेयर की थी ना, उसमें मैं फॉलो करता हूँ, उसमें आइदर ऑन द रेजिस्टेंस साइड और सपोर्ट साइड रेजिस्टेंस 1 2 3 रहता है, सपोर्ट 1 2 3 रहता है. So suppose if you are on the support or resistance, जो the highest width है अगर, not clear. am I clear now? I'm audible? A bit louder. Yeah. Okay. So मैं बोल रहा हूँ कि से सपोज अपने किसी स्टॉक का या अगर इंडेक्स के सपोर्ट 3 पे या रेजिस्टेंस 3 पे है, आपने उस टाइम बोला था 10% 10 से 15% का मूवमेंट वुड बी वेरी एक्सपेक्टेड एंड फास्ट हो सकता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. उसके ऊपर क्लोजिंग करने से, उसके नीचे क्लोजिंग. हाँ, तो मतलब ओके, तो उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं, उसके ऊपर चलने से ही हो जाएगा वो. तो से सपोज अगर मैं सपोर्ट 3 पे हूँ प्राइस, और वो सपोर्ट 3 को अगर प्राइस मतलब तो नहीं तोड़ रहा है, तो ऑन द अप साइड अगर 10% का नहीं, सपोर्ट 3 पे अगर है, हेलो, उसको अगर तोड़ता है तो नीचे में 10-15% इसलिए मूवमेंट है. अगर सपोर्ट 3 को नहीं तोड़ता है एंड वहां पे आप देखोगे चार्ट पे कि वो मैनेज कर रहा है, देन यू लुक एट द एक्सपायरी लेवल, नियरेस्ट एक्सपायरी की आपको दिख रही है, तो आपको लगा कि हाँ मिनिमम वहां तक तो जाएगा ही. एंड सेम इज विथ रेजिस्टेंस आल्सो. Am I able to clear? It's clear. Okay. Thank you, भैया. Puneet. Puneet, unmute. Puneet. Dhanpat bhaiya, one question. Very nice session bhaiya. Thank you so much, Puneet bhaiya, for being there. भैया जैसे अभी जैसे एक न्यूज आ रहा है मंडे को, अगर सपोज कीजिए सडन डाउन ब्रेक या ऊपर मूवमेंट हो जाता है नीचे ऊपर का, तो फिर अपने कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हैंडल? भैया मैंने वहां पे दिया है ना कि 17,614 के नीचे अगर चलता है, 614 को ब्रेक नहीं करता फ्यूचर में. हेलो, हेलो, if it doesn't break 18,614, expect कि is likely, तो को लगता है यहाँ से 808 टोटल एक्सपायरी लेवल ऑन द अपसाइड वो टेस्ट कर जाएगा. 514 तोड़ता है, 518 दोनों तोड़ देता है, विच इज इन द रिमार्क्स कॉलम. 515 अगर बंद करे, then you can see 18,000 level this expiry, which I think is मतलब least possible, मतलब possible में तो 18,620 पर मैं बुल कॉल स्प्रेड बनाऊंगा एंड बेयर पुट स्प्रेड बनाऊंगा, ताकि we can play on the both side with a good risk reward ratio. या तो आप 18,600 आप आई डोंट नो व्हाट यू ट्रेड, आप फ्यूचर्स करते हैं या आप अपना पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्या आप मतलब इक्विटीज में या जनरली मैं ट्रेडिंग ही करता हूं ऑप्शंस में, बटरफ्लाई स्ट्रेटजी, ऑप्शंस, बुल स्ट्रेटजी. हाँ, तो बुल कॉल पेयर पे आपको तो सब मालूम है भैया, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो कि हाँ आप वहाँ पे दोनों साइड एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड कि हाँ यहाँ पे मुझे मिनिमम 1:5 वेदर आपको बटरफ्लाई में मिले या आयरन कंट्रोल में मिले या आप रेशियो में भी आप लोग कल ही जाके एक बेयर दोनों डाल के गया. तो ठीक है, तो
आप 18 से 14 के आसपास आपको क्या रिस्क रिवॉर्ड दोनों साइड का मिलता है अच्छा, तो यू कैन, दैट इज द लेवल वेयर वन शुड एंटर द ट्रेड फॉर द एक्सपायरी. Okay. 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 Thank you. Thank you. No more raise hands. So if anybody wants to ask anything, they can unmute. Vinod Bhaiya, your views on the session, if anything. Thank you, Dhanpat. Thank you so much. Thanks for your efforts on day-to-day basis. मैं तो भैया बहुत novice investor हूँ. तुम तो expert के भी expert हो. I wish you all the best और तुम्हारी तबीयत अच्छी रहे, यही आशा करता हूँ. तब स्वस्थ रहो तुम, और मार्केट तो ठीक है, पहले स्वास्थ्य तुम्हारा ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए. मैंने भी आप लोग के आशीर्वाद से और प्यार से जरूर मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना स्वस्थ से स्वस्थ अपने आप को मेंटेन कर सकूं. क्योंकि ये काफी स्ट्रेसफुल काम है जो तुम करते हो, तो स्वास्थ्य पहले है. इसको लिमिटेशन में करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि तुम जितने दिन मतलब हम लोगों का सब मतलब लॉन्ग टर्म में साथ दोगे, हम लोग सभी फायदेमंद रहेंगे. आपकी बात एकदम सही है भैया, एंड I'll keep that in mind and I'll try to keep myself as stress free जितना हो सकता है मैं अपने आप रखने की कोशिश करूंगा. एंड इसके साथ ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस मॉडल को ऑटोमेट करके ऑनलाइन कर दूँ, ताकि इट शुड बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन इन फ्यूचर आल्सो, ऑटोमेट हो जाए. वही मैं चाह रहा था, जैसे तुमने जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर्स के बारे में जो बात करी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बारे में, हाँ. वो एक्सेल टेम्पलेट को अगर तुम ऑटोमेट करके उसमें जो एनएससी के कुछ फिगर्स ऑटोमेटेड वहां पर आ जाए, और वहां हम डाउन द लाइन 10 इयर्स का फिगर कि 5 साल बाद ये शेयर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक लेमैन में फिगर्स कुछ मिनिमल फिगर्स डाल के उसको मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके अगर फिगर जान सके कि 5 इयर्स डाउन द लाइन रिलायंस का दाम ये हो सकता है, ओएनजीसी का दाम ये हो सकता है, तो साधारण लोगों के लिए काफी सुविधामंद रहेगा. देखो 400 लोगों में 40 लोग, 50 लोग, 100 लोग एक्सपर्ट हैं, मगर 300 लोग डे टू डे बेसिस में शेयर्स नहीं करते हैं. वो वीकली एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द वीक या मंथली या सिप म्यूचुअल फंड में सिप ये सब करते हैं. अगर तुम वो चीज को ऑटोमेट कर दोगे तो हम लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है काफी फायदेमंद रहेगा. मैं कोशिश कर रहा हूँ. आई एम टेकिंग हेल्प फ्रॉम वन और टू पीपल एंड it's work in progress. It will take some time, but definitely I'll work on it because it's a lot of technology which is involved and इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, but I'll come up with a solution soon. थैंक यू सो मच धनपत. अगर हम लोगों की किसी की भी कोई जरूरत हो कभी भी बेहिचक तो हम लोगों को याद कर सकते हो. थैंक यू विनोद भैया, थैंक यू विनोद भैया. मैं आई एम ऑलवेज मतलब ग्रेटफुल टू यू. आपने हमेशा हेल्प किया है. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Vinod Bhaiya. Sushil Bhaiya, if you can unmute. Sushil Bhaiya. Yeah, I am audible. Yes, Sushil Bhaiya. Hello. हाँ सुशील भैया नमस्ते. भैया आवाज आ रही है? Hello. हाँ सुशील भैया. I am audible. Yes, you are audible. Thanks, Dhanpat, for the very good learning session for all. और बाकी मैं क्या कहूँ? I am not much acquainted with this quant model and something. So मैं ज्यादा इस बारे में कुछ नहीं कह सकता. But thanks to you. नहीं सुशील भैया, और बोलिए. सुशील भैया आपका जो कंट्रीब्यूशन है that's great to the. This is just a small thing which I am trying to do, and आप लोग के आशीर्वाद से मैं कोशिश करूंगा कि to live up to this thing and to make it better day by day. Yeah. Thank you, भैया. Anyone else would like to say anything? मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ. हाँ नितिन भैया प्लीज. हाँ, सुशील भैया के दर्शन तो कई लोग करना चाह रहे होंगे, उनको बोलिए कि अपना वीडियो ऑन करें. मैं भी बोलना चाह रहा था, बट वो सुशील भैया वीडियो ऑन करिए. पब्लिक डिमांड. वीडियो ऑन नहीं करूंगा, सेविंग नहीं किया हुआ है. तो क्या हो गया? मैं भी तो मास्क लगा के रखा हूँ. अरे
अभी कोई लड़की थोड़ी पसंद करने जा रहे हो, खोल लो यार। अरे ठीक है, सुशील भैया मैं भी ओके। वीडियो बंद कर लूं क्या फिर? दर्शन दे दीजिए भैया। अच्छा धनपत से मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ नितिन भैया जरूर। मैं तुम्हारे ही बैच का हूँ धनपत, थोड़ा सा इनफॉर्मल हो रहा हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि सेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मैं भी 98 बैच में ही था, मैं 94 में निकल गया था नोपानी से, बट आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने से कभी मेरा कोई इंटरेक्शन हुआ, या मुझे याद ही नहीं है कि तुम मेरे बैच में थे। मे बी उस टाइम सेक्शंस अलग रहे होंगे, इतना कोई कम्युनिकेशन नहीं था छोटी एज में दूसरे सेक्शन से। बट बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोग को, अच्छा लगता है। मेरा इंटरेस्ट है, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं करता शेयर मार्केट, लेकिन बहुत अच्छा नोपानी का कंट्रीब्यूशन रहा है लोगों को अवेयरनेस लाने में। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, वेरी गुड। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जो क्वांट मॉडल में ऑन डेली बेसिस जो हम देखते हैं, ये डेली बेसिस मतलब हम कब तक वॉच करें व्यू बनाने से पहले? आई मीन टू से, जैसे एक्सपायरी में 15 दिन है या 20 दिन है, तो वो डेली बेसिस का लेवल हम कब तक वॉच करें कोई व्यू बनाने से या कोई पोजीशन लेने से पहले? नहीं मतलब मैं आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं है। आप जैसे कि आप क्या करना क्या चाह रहे हैं, जैसे एग्जांपल? जैसे क्वांट मॉडल में लिखा हुआ है कि इस लेवल तक अगर डेली बेसिस पर रहता है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि क्वांट मॉडल के हिसाब से ये यहाँ पहुंचेगा। हाँ। तो ये डेली बेसिस हम कब देखें? जैसे आज हो गया, उस लेवल पे नहीं पहुंचा, कल नहीं पहुंचा, मतलब ये कब तक वॉच करें पोजीशन लेने से पहले? हो सकता है ऑप्शन हुआ ही तो आप अगर लॉन्ग है उसमें, तो सपोज रिलायंस में ही है सर, निफ्टी है 488 के ऊपर ब्रेकआउट था, तो नेक्स्ट दिन ही उसे 488 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, तो यू गो लॉन्ग इनटू दैट। नेक्स्ट टारगेट इज 763, तो 763 आप 2 दिन 3 दिन में अगर आता है, 4 दिन में आता है, जब तक पेट नहीं टूटता तब तक आप लॉन्ग रहिए, एंड वंस द टारगेट इज मेट आप वहाँ पे निकल जाइए। एंड 463 के 763 के ऊपर फिर चले तो यू कैन अगेन गो लॉन्ग विथ कीपिंग 763 एज अ स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, कीपिंग दिस माइंड एक बार मैं वापस स्टडी करता हूँ उस चार्ट को, अगर कुछ होगा तो मैं तुमको डीएम करूंगा। थैंक यू फॉर बीइंग डोंट कॉल मी भैया, आई एम सेम बैच एज ओके, यू। थैंक यू। हेलो सुशील भैया के सुशील भैया। हाँ, सुशील भैया मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आज रविवार संडे का सेशन सबने टाइम दिया है, भैया आप तो वीडियो दो अनम्यूट, ट्रेड वीडियो तो अपना दो चेहरा पिक्स तो देना दिखाइए। चाहता हूँ। सुशील भैया अपना चेहरा तो दिखाइए। दिख रहा है? हाँ दिखा दिए। थैंक यू। तो सोमवार जिलेट का दाम बढ़ेगा, सेव करोगे ना तुम? दो पिक दे रहा हूँ, कृपया नोट डाउन कर लीजिए। आप प्लीज सुशील भैया दो तो शेयर्स के नाम बता दीजिए आप। जीनस पावर या एंड एपटेक लिमिटेड। एपटेक कंप्यूटर वाला एपटेक ना, APTECH या ओके। ये दो शेयर आप लोग थोड़ा सा ट्रेड कम इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले सकते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ओके सुशील भैया, दिस इज आइसिंग ऑन द केक फॉर संडे। ओके, जो लोग छोड़ दिए उन लोग का नुकसान होगा। कल तो आग लगेगी इन दोनों शेयर में, नोपानी आग लगा देगा इन दोनों शेयर में। ये आप लोग मैं ग्रुप में डाल दूंगा, नोबडी विल मिस। ओके थैंक यू भैया। अनुपम जी सर बोलिए। Hi Dhanpal, this is Anupam from 88 batch. Although मैं आपसे सीनियर हूँ, but I'm a fan of yours. 25 years I've been in finance industry, and I always believes कि जो financial analyst है वही सबसे बढ़िया है, चाहे PV ratio हो, EPS हो, ये हो. I never believed in this quant model या technical analysis, but after getting associated with Nopany Group, I have become a big fan of you all. जो भी है, एक दो जन का नाम है, जैसे सुशील जी है, मिस्टर पोदार, then yours, गणपत जी, then अर्पित, और भी 4-5 जन है, बहुत है. I have become a big fan and I have started believing that actually technical model work. मैं कभी बिलीव नहीं करता because I have never ever किसी भी स्टॉक में मेरे पास तक लॉस नहीं हुआ है. I am a mid-term or a long-term investor and always 2x 3x के नीचे ना बेचता नहीं हूँ कोई भी शेयर. My picks are मतलब उस टाइप का ही picks है and do my own analysis. जैसे ये PV ratio है, ये है, सब these are on my fingertips, but कभी भी I didn't
never believed in टेक्निकल्स एंड ये, बट जब से आप लोगों के साथ एसोसिएटेड हुआ है नोपानी इन्वेस्टर ग्रुप से, तो आई स्टार्टेड बिलीविंग इन दैट एंड इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग. मतलब आई एम एक्चुअली एनरिच्ड विद दीज लर्निंग्स. बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है कि आई कैन रिगेन माय नॉलेज. इससे आप लोगों से बहुत कुछ सीखने मिल रहा है. आप लोग बहुत जन छोटे भी हैं, आप बहुत जन मेरे से सीनियर भी हैं, बट बहुत कुछ सीखने मिल रहा है. एंड ऑलवेज नॉलेज एंड एनहांसमेंट एंड एनरिचमेंट इज ऑलवेज बेटर देन एनीथिंग एल्स. जैसे आपने कहा कि भाई सीखना इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. दैट्स ऑल आई वांट टू टेल. थैंक यू. Anupam Bhaiya, there is a small request from you. Since you yourself pick stocks which gives 2 to 3x returns for long term, so I would like you to please keep contributing to the group so that we can also pick those stocks and invest for long term. Yeah, my long term pick is this जो ये क्या नाम है, just I missed out this power stock है ना, HPL Power. HPL Power. HPL Power. तो भैया आप जो भी आप ग्रुप में कंट्रीब्यूट करेंगे तो it will be a good. नहीं, definitely. मतलब it will become a multi as per my learning and as per my understanding which I have worked. Since you have told, that why I am just telling you. I think it will become 5x or 6x in next 4-5 years. It will be good if you can share in the group. And जब भी आप जब एनालिसिस करते हो तो आप ग्रुप में अगर आप करेंगे तो it will be there will be a new मतलब what you call एक नया एवेन्यू आ जाएगा ग्रुप में, and group can get मतलब benefit out of that also from your knowledge. Yeah, commentary सुनना, financial analysis करना, ये सब were my strength. But technicals, graphics, ये मतलब जो ग्राफ में आप लोग प्लॉटिंग करके देखते हो, ओल्ड स्कूल में हूँ तो इसलिए इतना नहीं आता है. तो आप जो कर रहे हैं, आप learning lot from you all and बहुत मेरे को अच्छा भी लग रहा है नया learning process से, and I'm enjoying it. Definitely बहुत चीज सीख भी रहा हूँ आप लोगों से. Thank you, but I will be looking forward for your contribution in the group here. Sure. Thank you. So officially 1 बज गया है. I think सबको अब lunch and everything is served, तो सबको जाना पड़ेगा. So I would request Gaurang Lakhotia to please give the closing remarks and formal vote of thanks for today's session. Thank you, Shyam. Thank you everyone. Hi Bhaiya, thank you for the wonderful session. I like but obvious बात है कि when we all are there in the group, so there is a connection with the financial market. That is the reason we are here. And उसमें बहुत चीजें आती है, लेकिन whenever we come to this learning sessions, definitely कुछ नया चीज के निकल के आता है. जैसे कि PV और FE मेरे लिए तो नया है. आई एम श्योर बाकी लोगों के लिए भी वो एसेट रिस्क मैनेजमेंट एक छोटी सी चीज है कि आपको अपने एसेट का जो रिस्क है वो आपको मैनेज करना है, लेकिन जब कोई बताता है कि कैसे मैनेज करना है, दैट इज वेयर इट कम्स इनटू आवर माइंड. एंड आई एम वेरी श्योर कि जब हम लोग अब कल से फिर ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे, तो विल बी कीपिंग ऑल दिस पॉइंट्स इन आवर यू नो दिस थिंग नोट्स की मुझे इसके बेसिस पे करना है. हैविंग सेड दैट इट द सेशन वाज वेरी वंडरफुल. आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड आल्सो वेरी वेल. Thanks to the trustee group, our alumni group, Shyam, for this coordination, for organizing this event. I think हम लोग को थोड़ा और frequently करना चाहिए Shyam, so that you know definitely भैया. Thank you for the public. जो जनता है वही आई है यहाँ पे, संडे को अपना टाइम दे रही है. I think we have hit 100 in between, correct? हमने 100 किया था. So that is the level of interest which we all have, and I don't think it money is always a matter. Market में तो money रहेगा, but it was about the learning, and I was very happy personally कि हाँ learning के लिए लोग आ रहे हैं. So thanks to everyone, those who have joined. Thanks to Sushil भैया for giving his picks. Anupam भैया, I am very sure कि अब हम लोग को भी 3x 4x investment वाले avenues मिलने वाले हैं वहाँ पर. And thanks to everyone once again. Thank you everyone. Have a lovely Sunday. And I would like to, so officially we are closing off. Shyam, I just like to yes bhaiya. I would like to thank all the people from the NA management group, especially you, Shyam bhaiya, Shyam, Sandeep bhaiya, Arun bhaiya, and everyone from the who has been active and taken active role in organizing this session in such a short notice, and which is helpful for
everyone, and I'll take the opportunity to thank जितने भी भाई लोग हमारे बड़े भैया एंड छोटे भाई लोग ने जो उसको संडे को अटेंड किया, उसके लिए मैं उनके लिए काफ़ी थैंकफुल हूँ. एंड इफ एनीवन हैज एनीथिंग, you can ask me whenever you want in group or in DM, and I'll try to keep up to what I'm been doing. थैंक यू भैया, थैंक यू. एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. अगर और किसी को भी कोई सजेशन है तो प्लीज डीएम करें. वी आर ऑल वेटिंग कि कुछ नया करने को मिले, कुछ एक्स्ट्रा करने को मिले फॉर ऑल द एनएनए मेंबर्स. सो इफ एनीथिंग इज देयर, प्लीज डीएम मी. वील टेक इट फॉरवर्ड. थैंक यू एवरीवन. हैव अ ग्रेट डे. Thank you.